Yes, very good morning. Yes, Peter. Good morning. We had done the last part. Let me show this to you. Symmetry is done. Types of flowers. Hypogynous, perigynous, epigynous is done. I was talking about gamocephalus, gamopetalus. Then estivation you did. The last one with 5 petals. Androecium, epipetalus, epiphyllus. Yesterday we had given some figures where we were told to identify epipetalus and epiphyllus, and then we did polyandrous and synandrous flowers. This was what I did with you, monodelphous, diadelphous, and this was polydelphous flowers. And this is where we left that if you see over here, the length of the filament would be different. We were discussing the length of this. It's too long in salvia and it could be very short in mustard. Now see, we did this stigma style ovary, apocarpus, and syncarpus. Carpels are free, carpels are fused. This part we did. We did all these presentations. Yesterday, margin exile, you were able to identify basil. We did examples of tomatoes. Fruits is what we had started. This is what I had introduced with you. What are parthenocarpic fruits? Monocarpellary superior ovary fruits. Then we talked about the layers, epicarp, mesocarp, endocarp. And then I said we'll be starting with the seed right from today. Though the first slide was done, but let's start from seed today. We did that mature and ripe ovaries, they form fruits. Similarly, the mature ovules, they develop into seeds after fertilization. Mature ovaries, they develop into seed fruits, and mature ovules, they develop into seeds after fertilization. If you look at a seed beta, a typical seed is made up of a seed coat. You see the outer covering is seed coat and then the embryo. Now the embryo has a radicle which will later grow into your root system. It has a plumule which grows upwards, which will grow into your shoot system. And it may have one cotyledon or it may have two cotyledons, depends. If it has one cotyledon, we call those plants as monocotyledonous or monocots. And if it has two cotyledons, then we call it as dicotyledonous, or what do we call it as? Dicots in short. See picture. The outermost covering over here, if you see, this is the seed coat. Seed coat also, it has two layers. Now let me show it to you over here. This is a seed. This is the outermost seed layer. This is called as a seed coat. In seed coat also, the outermost is testa. The outermost layer that we have, what is it? Yes, Peter. This is testa. See over here. And then we have an inner layer, this one, brown one, if you can see. This is tegmen. Testa and tegmen.
Can you see the layers, children? See? See this carefully, beta. This is the outermost layer. This is called testa. And the just inner to this is what we call as tegment. ठीक है बेटा, tell me very quickly. There are two layers of the seed coat. The outermost layer is called. You should be able to identify when I hide this. Yes, Pichu. If I'll hide this label part, आप बताना चाहिए. The inner one, ये जो brown वाला दिख रहा है, this is called tegment. अब ये सीड कोट है आपका. अब ध्यान से देखो बेटा, इस पे आ जाते हैं ताकि ठीक से दिखाई दे. There is a scar. ये scar मतलब एक छोटा सा निशान रह जाता है, छोटा सा दाग जैसा, which is known as hilum. ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है. अब ये स्कार या ये जो दाग है ये क्यों रह जाता है? Because it is through this that the developing seeds are attached to the fruit. इसी पॉइंट पे जब सीड डेवलप होता है, फ्रूट से अटैच्ड होता है. That is why we have a scar over here and the scar is known as hilum. ठीक है बच्चे, सब याद रखना. The scar that we have is hilum. यहाँ से जो डेवलपिंग सीड्स है वो फ्रूट से अटैच्ड हो जाते हैं. Above the hilum is a small pore called the micropyle. ये hilum है. देखिए हाइलम के बिल्कुल ऊपर जाइए, इसको बेसल पार्ट मानिए, इधर को जाएंगे तो ये होल दिख रहा होगा, छोटा सा पोर. दिस इज कॉल्ड एज अ माइक्रोपाइल. ओके, चलो लेट मी डू दिस विद यू अगेन. ये फर्स्ट लेट मी लेबल ऑल द पार्ट्स विद यू. अब अंदर चलते हैं सीड कोट के अंदर. वी हैव द एम्ब्रियो. दिस इज द एम्ब्रियो. इफ यू कैन सी वी हैव कट ओपन द एम्ब्रियो. ये आपका एक्सिस है, ये दिख रहा है एम्ब्रियोनल एक्सिस. You have two cotyledons. यहाँ पे डाइकॉट दिख रहा है, 1 and 2, two cotyledons. These cotyledons are very fleshy because इसमें food material store होता है. फिर उसके बाद आप देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये आपका एक्सिस के एंड्स पे एक तरफ रेडिकल ग्रो करता है, दूसरी तरफ क्या ग्रो करता है? फ्लूमल ग्रो करता है. फाइन, चलिए फिर से पहचानेंगे, थोड़े से पार्ट्स अभी बचे हैं. outermost covering of the seed, this is called as. Yes, outermost covering of the seed is called. बोलो बच्चे. Seed coat. It is called seed coat. Seed coat has how many layers? 2 layers. Yes. What is the outermost layer called? Testa. Very good. तो ये दिख रहा है, outermost layer is testa. अंदर वाला is what we call as Tegmen. बिल्कुल सही. हाँ, अब इसके अलावा let's go down. कितने cotyledons दिख रहे हैं यहाँ पे? 2. 2 cotyledons. So this is monocot or dicot? Dicot. Very good. अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं. ये वाला जो स्कार है जहाँ पे एक्चुअली फ्रूट से अटैच होता है सीड, व्हाट इज दिस पॉइंट कॉल्ड एज? Hilum. वेरी गुड. अभी इसका फंक्शन देख लेंगे. अभी हाइलम के ऊपर यू हैव दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज दिस? Micropyle. वेरी गुड. अब देखो बेटे, ये जो एपिकॉटल दिख रहा है आपको, ये दो वर्ड्स यूज करेंगे. कभी आपने पढ़ा होगा कहीं, एक एपिकॉटल होता है, एक हाइपोकॉटल होता है. ओके, तो ये एपिकॉटल जो है ये कॉटिलेडन से ऊपर एक्सटेंड करता है. ये वाला ऊपर को ग्रो करेगा. दिस एपिकॉटल ये ऊपर एक्सटेंड कर जाता है कॉटिलेडन्स के, और यहाँ से ये आपका शूट अपेक्स, लीफ, जो लीफ ग्रो करते हैं, लीफ प्राइमोडिया, शूट अपेक्स, ये सब ग्रो करते हैं. ठीक है. एक कहीं कहीं आपने हाइपोकॉटल वर्ड पढ़ा होगा. ये रहा हाइपोकॉटल. लेट मी शो यू दिस. ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये हाइपोकॉटल. इस हाइपोकॉटल पार्ट को हम लोग ट्रांजिशन जोन बोलते हैं. मतलब शूट एंड रूट, इन दोनों के बीच में जो जोन है, ट्रांजिशन जोन, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपोकॉटल. एंड जो ऊपर बिल्कुल क्लियर जा रहा है ऊपर, ये आपका शूट अपेक्स बनाएगा, लीफ प्राइमोडियाज. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिकॉटल. ओके, देयर इज अ वर्ड एपिकॉटल. तो अगर एपिकॉटल, ये याद रखना एम्ब्रियो स्टेज की बात हो रही है.
सो ये एक्सिस है आपका, हम ये मान ले रहे हैं ये एक्सिस है इसका सीड का। सो जो पोर्शन एक्सिस का प्लांट एम्ब्रियो का अबव द कॉटिलेडन्स आता है, अबव द कॉटिलेडनस नोड, ये जो है ये अटैचमेंट नोड है, दिस इज नोड ऑफ अ कॉटिलेडन। इसके ऊपर ये एक्सिस पे जो भी पार्ट आ जा रहा है वो आपका एपिकॉटिल हो गया। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज एपिकॉटिल। ना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो है एपिकॉटिल एंड इसमें क्या फर्क है प्लूम्यूल, क्योंकि अभी तक हम लोग यही पढ़ते हैं जो ऊपर ग्रो करता है वो प्लूम्यूल है, जो नीचे ग्रो करता है वो रेडिकल है। सेम चीज हम एपिकॉटिल के बारे में पढ़ रहे हैं। सो द पार्ट ऑफ दिस विच लाइज अबव द कॉटिलेडन्स, ये तो एपिकॉटिल हो गया। ठीक, प्लूम्यूल क्या होता है? टिप ऑफ द एपिकॉटिल, जिससे पहली लीव्स निकलती है, पहली ट्रू लीव्स ऑफ अ प्लांट निकलती है, वो प्लूम्यूल होता है। और प्लूम्यूल क्या होता है? टिप ऑफ द एपिकॉटिल। तो पहले आप ये समझ लीजिए डिफरेंस बिटवीन एपिकॉटिल एंड व्हाट वी सेड प्लूम्यूल। कोई डिफरेंस नहीं है। एपिकॉटिल का जो टिप है जहां से कि पहली लीफ निकलेगी, दैट पार्ट इज व्हाट वी कॉल एज प्लूम्यूल। ओके, क्योंकि यहाँ पे यही कंफ्यूजन आ सकता है। आई वाज एक्सपेक्टिंग आप लोग पूछेंगे बट योर बैच तो नेवर आस्क्ड ओनली। आई एम सेइंग कि रेडिकल नीचे ग्रो करता है, प्लूम्यूल ऊपर ग्रो करता है। अभी मैं ये भी बोल रही हूँ कि एपिकॉटिल ऊपर ग्रो करता है, तो दिख तो एक ही चीज रही होगी यहाँ पे कि एक ही चीज ऊपर ग्रो कर रही है। सो वेदर इट इज एपिकॉटिल और प्लूम्यूल, सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन बेटा। ये जो पार्ट है जो कॉटिलेडन्स, ये देखिए आपके कॉटिलेडन्स है, यहाँ से अबव ग्रो कर गया ऊपर, ये हो गया आपका एपिकॉटिल। एंड टिप ऑफ एपिकॉटिल इज कॉल्ड Plumule. Plumule. Okay, so understand this, they are basically the same only. एक और वर्ड जिसमें कंफ्यूजन बहुत रहता है बहुत सालों तक, दैट इज हाइपोकॉटिल। ये अब हमारा पार्ट ऑफ द स्टेम है एम्ब्रियो प्लांट का, बीनीथ द स्टॉक ऑफ द सीड। यहाँ आप ऐसा कर लो कि बीनीथ द कॉटिलेडन्स। ठीक है, ये देखो, ये ये बीनीथ द कॉटिलेडन्स। तो ये क्या बन गया आपका? एपिकॉटिल है हाइपोकॉटिल है? ये जो नीचे को जा रहा है ये एपिकॉटिल है कि? अच्छा, बट सेम कंफ्यूजन यहाँ पे भी, यहाँ पे रेडिकल लिखा है तो इसका मतलब यहाँ से तो रूट्स निकलेंगी। तो आप ये समझो, सपोजिंग ये रूट्स हैं, तो डायरेक्टली अबव द रूट, ये जो अबव द रूट वाला पार्ट आएगा ये हमारा रेडिकल हो जाएगा। और उसका जो टिप होता है एपिकॉटिल का वो हमारा प्लूम्यूल हो जाता है। सिमिलरली ये इसका जो टिप्स है, हम मान ली ये रेडिकल रूट्स है पूरा नीचे, यहाँ से रूट्स ग्रो करेंगे बाद में, तो ये जो रूट्स का टिप आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाट वी कॉल एज हाइपोकॉटिल। व्हाट इज इट कॉल्ड? hypocotyl. So they are almost the same. Only the tip part is what we call as epicotyl and we call it as hypocotyl. ये जो epicotyl है बेटा, इससे leaves बनती है, this part. Okay, ये देखो ध्यान से, एपिकॉटिल फाइनली क्या बनाएगा? प्लांट की लीव्स बना देता है। और जो हाइपोकॉटिल है, ये नीचे का पार्ट दिख रहा है आपको, वो क्या बनाएगा? गेस करिए। कमान कमान, एपिकॉटिल से तो लीव्स ग्रो करेंगे, तो हाइपोकॉटिल से क्या ग्रो कर जाएगा बाद में? Roots. Roots. एग्जैक्टली, उसी का टिप्स है ये। सो थोड़ा बहुत प्लीज रिमेम्बर, डेफिनेशंस में थोड़ा कंफ्यूजन आएगा कभी कभी। लास्ट टाइम आई एम डूइंग विद यू, एपिकॉटिल ये वाला पार्ट है, पार्ट ऑफ द सीडलिंग, सीड बोलिए सीडलिंग बोलिए, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये नोड पॉइंट है, ये कॉटिलेडन्स का ये जो पॉइंट है ये नोड है आपका। तो अबव द नोड आपको दिखाई देगा डाइकॉट एम्ब्रियो, कॉटिल बोलते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये ग्रो करेगा और ये खत्म हो जाएगा, जिस टिप पे ये खत्म होगा वो जो टिप आएगी वो हमारा प्लूम्यूल हो जाएगा। इज इट ओके? सेम हाइपोकॉटिल पे चलते हैं, नीचे वाला पार्ट है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, दोनों दो बोथ कॉटिलेडन्स के बीच में, ऑफ कोर्स इट्स अ डाइकॉट एम्ब्रियो। ये यहाँ से नीचे की तरफ ग्रो करता है एंड ये टर्मिनेट कर जाएगा। ओके, एपिगियल सीड जर्मिनेशन होता है, आई थिंक विल डिस्कस अबाउट इट लेटर। सो दो कॉटिलेडन्स तो है ही आपके यहाँ पे देखो, एपिकॉटिल एंड प्लूम्यूल ऊपर हो गया, इससे आपका शूट सिस्टम बना।
और नीचे अगर आप देखो तो हाइपोकॉटिल एंड रेडिकल आ जाएगा, जिससे कि रूट सिस्टम बने। सो ऑलवेज रिमेंबर एपिकॉटिल इज इन्वॉल्व विद डेवलपमेंट। एपिकॉटिल का टिप हमारा प्लूम्यूल है तो शूट सिस्टम, ये नीचे जाके इसका जो टिप है यहाँ से रूट्स ग्रो कर जाएंगे, तो ये हमारा शूट सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। एपिकॉटिल हाइपोकॉटिल थोड़ा सा कंफ्यूजन था। See, we know what are cotyledons, we know what is endosperm, radicle, hypocotyl, epicotyl, seed coat, and cotyledons. Hilum, micropyle, plumule, cotyledons, radicle. अच्छा, can you identify? ये टिप हमारा प्लूम्यूल है, तो ये जो पार्ट ग्रो करा होगा जिसके ऊपर टिप पे ये प्लूम्यूल बना, ये कौन सा पार्ट रहा होगा बच्चा? क्या है ये बताओ, अभी डिस्कस किया। Tell me quickly, we just discussed. Epicotyl. वेरी गुड, किसके टिप पे बनता है? एपिकॉटल। एंड दिस लोअर पार्ट ये रेडिकल बना रहा है, ये इसके टिप पे रेडिकल आया एंड रेडिकल से फिर इधर रूट्स ग्रो करेंगे। सो ये जो पार्ट नीचे को जा रहा है, ये वहां पे ये वाला पार्ट है, नीचे से रूट्स आ जाएंगे। व्हाट इज दिस? एपिकॉटल और हाइपोकॉटल। गुड। एपिकॉटल गिव्स राइज टू द शूट सिस्टम एंड हाइपोकॉटल गिव्स राइज टू root yes, okay. Cotyledons everybody knows, radical पता है, hypocotyl पता है, epicotyl पता है, seed coat भी पता है, seed cotyledons भी पता है. What is endosperm? Endosperm of a seed. Yes, you should see in the slide that what part is not explained. Rather, you should ask me. Endosperm of a seed क्या होता है, जल्दी बताइए. See, main tissue बेटा इसके अंदर जो एम्ब्रियो को नरिश करता है फ्लावरिंग प्लांट्स में मेनली, ठीक है, द फ्लैशी फूड स्टोरिंग पार्ट, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंडोस्पर्म। क्लियर एवरीबॉडी? दिस फ्लैशी फूड स्टोरिंग पार्ट जो है, दिस इज एंडोस्पर्म। ये बाहर वाले कॉटिलेडन्स हैं, अंदर ये जो फूड स्टोर्ड है सॉफ्ट एंड फ्लैशी, दिस इज एंडोस्पर्म। फिर ये आपका रेडिकल नीचे को ग्रो कर रहा है, हाइपोकॉटिल, एपिकॉटिल, सीड कोट एंड कॉटिलेडन्स. In some seeds, such as castor, the endosperm is formed due to double fertilization. So it's a food storing tissue. In some seeds, such as castor seeds, ye dekhiye beta. Endosperm, I just told you what is endosperm. Endosperm is formed due to double fertilization. And what is its main function? Read on the screen, what is the function? बच्चा ये देखो क्या लिखा है, what is its function? कैस्टर पता है क्या होता है? Root कैस्टर storing. ऑयल कभी देखा है? हैव यू एवर हर्ड और सीन एनीवेयर बीइंग सोल्ड कैस्टर ऑयल? नो, ये बेटा हिंदी में भी बहुत कॉमन नहीं है, इसे एरंड बोलते हैं, एरंड का तेल बोलते हैं, एरंडी ऑयल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ. इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड, स्पेशली फॉर पीपल जिनका हेयर ग्रे हो जाता है जल्दी. इट्स वेरी गुड, कैस्टर ऑयल इज वेरी गुड फॉर देम. हेयर फॉल्स एंड हेयर का जल्दी ग्रे होना, ऑल दीज थिंग्स में ये बहुत काम आता है. कैस्टर सीड्स होती है, इसमें से हम ऑयल निकाल लेते हैं. मे बी योर पेरेंट्स नो अबाउट इट. इन हिंदी इट इज कॉल्ड अरंडी का तेल. इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेयर. यहाँ पे हमारा कंसर्न ये है दैट इट स्टोर्स फूड एंड सेकेंड इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. अब ये क्या चीज होती है डबल फर्टिलाइजेशन? एनीवन इन द क्लास? आई एम गोइंग स्लो इन दिस टॉपिक इन सीड्स बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा नया नया चीज आ रहा है आपके लिए. यस, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? एनीवन हैज एन आइडिया? अच्छा, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये बताओ बच्चे. नॉर्मल फर्टिलाइजेशन क्या होता Ma'am, है? when male gamete fuses with female gamete to form a zygote. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके, समवॉट इवन इन ग्राउंडनट, आई टेल यू, इवन इन ग्राउंडनट हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है. सी दिस double fertilization is seen in many plants. It is in what do you call this?
कैस्टर सीड्स तो ऑफकोर्स ये होता ही है. इट इज ऑल्सो सीन इन ग्राउंड नट. ये बहुत कॉमन सा आपका चीज आपको देखने को मिल जाएगा इन ग्राउंड नट एज वेल. देखो इसमें हो क्या रहा है, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट से पहले precedes embryo development. Normally embryo पहले बनता है, एंडोस्पर्म बाद में बनता है, isn't it? यहाँ पे कुछ उल्टा हो जाता है. एंडोस्पर्म पहले बनने लगता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होता है. तो जो एंडोस्पर्म है बेटा, उसका जो न्यूक्लियस है वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है. द न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड. एंड जब उसमें माइटोसिस होता है तो न्यूक्लियस तो डिवाइड करता है, ओके, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है. सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, ओके. सो ये इस स्टेज में जो आपके सेल्स हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, दे जस्ट स्टोर फूड मटेरियल. एंड लेटर वही चीज जाके बाद में किस में डेवलप हो जाती है, एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है. डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं हम लोग, ये तो चीज समझ में आ गई कि मेन चीज इसमें क्या है कि क्या चीज पहले हो जाती है, एंडोस्पर्म पहले बनता है या पहले आपका जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है. I think you have not understood anything. Let me take it again with you. We are talking about which plant? Tell me first quickly. Let me take it again with you. बेटा वो स्क्रीन पे देखिए. I was talking about which two plants I mentioned? Castor and I just gave you one more example now. Groundnut. Castor and groundnuts. अब ध्यान से सुनना, बहुत शॉर्ट में बताते हैं what is double fertilization. There are two sperm cells. ठीक है? There are two sperm cells. Obviously, one sperm cell is going to fertilize the egg and zygote बन जाएगा. Just now your friend shared it with you. ये normal fertilization है. One sperm cell, one egg cell fusing, zygote formation takes place. But I told you there are two sperm cells here. So अब क्या होगा? The other sperm cell, it does not have an egg cell to fuse with. तो वो पोलर न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई होते हैं जो सेंटर पे नहीं होते, सेल के कोने में होते हैं, दे आर नोन एज पोलर न्यूक्लियाई, उसके साथ फ्यूज कर जाएगा. अब वहां जब फ्यूज करेगा तो जाइगोट नहीं बनेगा. जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं. क्या चीज बन जाती है, एंडोस्पर्म. So understand we had two sperm cells. One sperm cell normal is going to fertilize with the egg and form a zygote. Second sperm cell, because we have only one egg cell, it cannot fuse with the egg cell. So it fuses with the polar nuclei. दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटा, टू पोलर न्यूक्लियाई. तो आप सोचो एक न्यूक्लियस हो गया स्पर्म का, दो न्यूक्लियस हो गए ये वाले पोलर न्यूक्लियाई वाले, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म. नाउ जो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ वो तो सीड बना देगा, ठीक. एंड जो टिश्यू है हमारा ओवरी का वो फ्रूट ही बनाता है. सो बेसिकली ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है इसमें. देखो जल्दी. I just told you in double fertilization, one sperm fuses with the normal egg cell and forms what? It forms what? Tell me quickly. Zygote. Yes, zygote. And the second sperm cell, it fuses with polar nuclei. You have a detail in class 12th in this. How many polar nuclei आते हैं? Two polar nuclei आते हैं. तो second sperm जो है वो polar nuclei के साथ fuse करेगा. It will not form a zygote. It will form the endosperm. What is it? What will it form? Endosperm. So if you see, there are two fertilization taking place. One sperm is fertilizing with the egg and the other sperm is fertilizing with the polar nuclei. एक तरफ तो जाइगोट बन रहा है, दूसरी तरफ क्या बन रहा है बच्चों, Endosperm. एंडोस्पर्म. तो वेदर एंडोस्पर्म बन रहा है या जाइगोट बन रहा है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. हाउएवर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा बोथ द केसेस में. Fertilization is taking place or not, children? Yes or no? Both the fertilizations are taking place. That is why we call this fertilization as Double fertilization. yes, double fertilization. Now, who will tell me what is double fertilization? Very briefly, you tell me. I am absolutely okay. या मिलके कर लेंगे. Wherever you get stuck. Krish, Anadi, so many of you are there in the class. Anmol, बोलो बच्चा.
What is double fertilization? चलिए मेरे साथ करो. These are some important terms in biology which you should know. How many sperms? 2. हाँ, Two. बोलो. I'm helping you. How many sperms are there? There are 2 sperms. One sperm, normal fertilization. मतलब it will go and fuse with fertilization with Egg. Egg. क्या बनेगा? Zygote. Zygote. वेरी गुड. दूसरी तरफ एक इमेजिन करिए, ग्रोइंग सेल है. वी आर टॉकिंग अबाउट एन एम्ब्रियोनिक स्टेज. तो एक साइड में न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं बिकॉज दे आर लोकेटेड टुवर्ड्स द पोल्स. सो व्हाट अबाउट द सेकंड फ्यूजन? It will form endosperm. Yes, to form the endosperm. Very good. This is a fusion between polar nuclei and the sperm because there is only one egg cell. So we can have only one zygote. However, in the other case, the other sperm is going to fuse with the polar nuclei. तो हमारा बन गया एक बनेगा endosperm. So what are the two products of double fertilization? Zygote and endosperm. Zygote and endosperm. Very, very good. So just remember that this starts because we have how many sperms in this case? 2. 2. अच्छा, अब कैस्टर के बारे में 2 चीजें हमने पढ़ी. One thing very important that it stores. Tell me, what does it store? It stores food. And second, it is formed as a result of, अभी पढ़ा था कौन सा fertilization? Double fertilization. Double fertilization. There are 2 examples which you need to remember whenever we talk about double fertilization. Which ones? Castor and groundnut. Castor and groundnut. Okay. Now, see, so many times we have done double fertilization and I'm sure things are a bit clear to you. So let's go further. Just read on the screen what is there. Let me share the link with the other class. Just give me 1 second. Bache, you people read what is there on the screen. Just give me 1 second. Let me share the link. Chalo, very quickly. In plants such as bean, gram, and pea, the seeds are non-endosperms. Endosperm is not seen in mature seeds. यहाँ पे क्या बना था बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन में एक जाइगोट बना था और एक क्या बना था? Endosperm. Endosperm. यानी डबल फर्टिलाइजेशन. Here they are saying that in these plants like bean, grams, pea, seeds are non-endosperms. मतलब क्या चीज नहीं बन रही है? Endosperm. So is it double fertilization or single fertilization? Normal wala? Single. Single fertilization. So always remember जहां भी endospermus दिख रहा है, endosperm बन रहा है, that means वहां पे double fertilization है. So castor seeds, groundnut seeds ये आपका double fertilization में आएगा. Bean and gram ये non-endosperms है because endosperm is not seen in mature seeds. Structure of a monocot seed. Generally, monocot seeds are endospermic, but some are non-endospermic also. Generally, monocots में endosperm होता है, but however, there are some which are non-endospermic. The example is orchids. In cereals like maize, the seed coat is membranous and generally fused with the fruit wall. Normally, हमारा seed coat थोड़ा tough रहता है. हमने पढ़ा था टेस्टा, tegment and all. But in some cereals, especially if you take the example of maize, तो जो seed coat होता है वो membrane like होता है, थोड़ा soft होता है and fruit wall से बिल्कुल attached होता है. Endosperm is bulky because it stores food and the outer covering of the endosperm separates ये वाला. Outer covering of the endosperm separates the embryo by a protein layer which is called alurone layer. This is again one thing that you need to see. ये alurone layer ये वाला है, ये दिखाना है आपको, ये देखो. This is one, let's see it very quickly. इस चीज को समझ लेते हैं.
ऑल अबाउट दिस सीड। एक तो ये देखिए कि एंडोस्पर्म बहुत बल्की है. Why it is bulky? Because it stores a lot of food. Number 2, इसका जो सीड कोट है, ये देखिए बेटा, सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दे आर फ्यूज्ड टुगेदर. अलग अलग इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द मेज सीड. सो मेज सीड में इफ यू सी सीड कोट मेम्ब्रेन लाइक है एंड ये फ्रूट वॉल है, दोनों आपस में फ्यूज्ड है, अलग अलग नहीं है, ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एंडोस्पर्म बहुत बल्की है बिकॉज इट इज स्टोरिंग फूड. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आउटर कवरिंग है एंडोस्पर्म का, ये आपका एम्ब्रियो है. इसके बीच में एक और लेयर आ रहा है, ये वाला, दिस, इट्स अ प्रोटीन लेयर. This protein layer is called as the alurone layer. What is this layer called as? Alburon layer. So if we talk about the maize plant, we need to remember maize seed. There are three things. The seed coat is membranous. See this? Seed coat and fruit wall, they are fused to each other. And we have a layer over here. बेटे देखो ये देखो. अगर आप क्लियरली देखो तो ये एक ही लेयर दिखाई देगी आपको. ये येलो वाला जो प्लेन दिख रहा है ना, जिसमें लाइंस नहीं है, एक ही लेयर दिख रही है. एक क्यों दिख रही है? बिकॉज सीड कोट एंड फ्रूट वॉल आर फ्यूज टुगेदर. और ये जो लाइंस वाली लेयर आपको दिख रही है, ये वाली, दिस इज द एलुरोन लेयर. बिकॉज एलुरोन लेयर आ जाती है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पेस. तो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, बोथ ऑफ देम, दे गेट अटैच्ड टू ईच अदर. बिल्कुल अलग दिखते ही नहीं है हमारे. Embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. ये देखो बच्चे ध्यान से, ये देखिए आपका एंडोस्पर्म है ये पूरा का पूरा. लेकिन एंडोस्पर्म तो बहुत बड़ा है, इट स्टोर्स अ लॉट ऑफ फूड. बट एम्ब्रियो का क्या कंडीशन है यहाँ पे? ये देखिए, ये पूरा का पूरा एंडोस्पर्म है, ये एम्ब्रियो है. सो एम्ब्रियो कहाँ पे सिचुएटेड है? बहुत छोटा है एंड एट अ ग्रूव, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. ये देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये ग्रूव बन गया हमारा. तो ये हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलिडन विच इज नोन एज स्कूटलम. ये देखिए, ये लार्ज शेप्ड ये वाला जो पार्ट है, ये, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्कूटलम. एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद अ प्लूम्यूल एंड अ रेडिकल. एक छोटा सा एक्सिस है, ये आपका ऊपर को प्लूम्यूल ग्रो कर जाएगा, नीचे को ये वाला पार्ट हमारा रेडिकल बनेगा. तो ओवरऑल इफ यू सी एंडोस्पर्म तो बहुत बड़ा है, लेकिन एंडोस्पर्म के अंदर एक ग्रूव जैसा स्ट्रक्चर बनेगा. ये देखिए, ये ग्रूव बन रहा है, ये वाला पार्ट है. एम्ब्रियो यहाँ पे लोकेटेड है. इन एम्ब्रियो पार्ट ऑल्सो इफ यू सी, ये इसकी शील्ड लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव वाला पार्ट. ये पूरा बाहर प्रोटेक्शन के लिए. दिस इज स्कूटलम, दिस इज नोन एज स्कूटलम. एंड यहाँ पे प्लूम्यूल, यहाँ पे रेडिकल. नाउ दिस प्लूम्यूल, ये देखिए कितना छोटा सा प्लूम्यूल दिख रहा होगा. प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ और अ कवरिंग. ये दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड कॉल्यूक्टाइल. ओके, ये वाला प्लूम्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज नोन एज कॉल्यूक्टाइल. And the radicle is protected with a sheath or a membrane which is known as coliorhiza. Let's do this part again. I know it's a little difficult for you. ये क्या है हमारा पूरा बड़ा का बड़ा बेटा? ये पूरा बड़ा का बड़ा क्या है बताइए? दिस इज एंडोस्पर्म. सबको याद है ना एंडोस्पर्म क्या था? Children, do we remember what is endosperm? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Double fertilization, we got a product. तो ये food store होता है. Basically, lot of food is stored in the endosperm. So this entire whole big thing is the endosperm. एंडोस्पर्म के एक साइड पे एक ग्रूव बन गया. ठीक है, ग्रूव इज अ पार्टीशन काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर. यहाँ पे ग्रूव के इस छोटे वाले पार्ट में हमारा एम्ब्रियो ग्रो करेगा. इस एम्ब्रियो के ऊपर ये हमारा एम्ब्रियो पार्ट ग्रो कर रहा है. ये प्रोटेक्टिव शील्ड है एम्ब्रियो के, ये वाला पूरा जो पार्ट है. ग्रूव के अंदर आ जाइए, उधर का पार्ट छोड़ दीजिए पूरा. लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट. दिस इज नोन एज स्कूटलम. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्कूटलम. इसी में हमारा ये प्लूम्यूल ग्रो करेगा, रेडिकल ग्रो करेगा. Now this plumule is protected by a membrane or a sheath which is known as
Tell me, speak out, you'll be able to remember. Speak out, beta. Membrane sheets of plumule, what is it called? Coleorhiza. Plumule wala. Coleoptile. Very good. Coleoptile. And radical का जो sheath है, जो ये radical है, radical को जो sheath cover कर रहा है, what is this known as? Coleorhiza. Okay, this is known as coleorhiza. So we have got these two words, coleoptile, coleorhiza. Let me see if you people can identify it somewhere. चलो इसको मानते हैं. This is endosperm. This is the embryo. अब यहाँ तो embryo grow कर ही रहा है पूरा का पूरा. Identify करने की कोशिश करते हैं. Let me see if I have a seed over here. चलो. I'm talking in monocot seeds. No? Monocot seeds are normally endospermic or non-endospermic. Endospermic. Very good. However, we have exceptions. जहाँ double fertilization नहीं होता है and seeds are non-endospermic. Example? Okay. Very good. Okay. अब आगे चलते हैं. We've taken an example, best example of monocot seeds, maize. M for monocot, M for maize. Easy way to remember. Seed coat is fused with, in monocots, tell me very quickly, seed coat is fused with? Root wall. Root wall. Very good. एक additional ये आपको दिख रही है protein layer. What is this layer known as? Allurone layer. Good. It is known as allurone layer. Let's go further. The entire part, ये पूरा जिसमें food store हो गया है, this is what we call as endosperm. Endosperm में एक partition जैसा ये बन गया. What is this part known as? This is a groove. What do we call it as? Groove. अब ग्रूव बनने से ये हो रहा है कि पूरे एंडोस्पर्म में बेटा ये ग्रो नहीं कर रहा है आपका एम्ब्रियो. एक साइड में, एक छोटे से कोने में ग्रो करेगा बस. ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है. दिस इज द प्लूम्यूल. Plumule is covered by a sheath which is known as Coleoptile. coleoptile. Radicle is also covered by a sheath which is known as Coleorhiza. coleorhiza. तो मतलब अगर हम मोनोकॉट सीड्स की बात करते हैं तो एंडोस्पर्म के एक बहुत छोटा पार्ट, एक छोटे पार्ट में ही हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है. However, वहां पे एक पार्टीशन है. ये पार्टीशन इज मेड अप ऑफ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पे भी कौन सी लेयर की कवरिंग आ रही है? इफ यू सी, which layer was this? लाइंस वाला जो है, प्रोटीन वाला जो लेयर था, what is its name? Layer. Very good, allurone layer. एंड ये सिंगल लेयर क्यों दिखाया है यहाँ पे, ये येलो वाला? Why do we have a single layer? Because what is Seed coat and fruit wall. we learned about two membranes. The one which covers the upper part, okay, that is the plumule, is called Coleoptile. Coleoptile. and the one which covers the lower one, that is radicle, is called. Coleorhiza. Coleorhiza. तो बेटा मोनोकॉट सीड में मेन चीज यही है. एक तो मेन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि सीड कोट एंड फ्रूट वॉल फ्यूज्ड है. वी हैव दिस प्रोटीन लेयर व्हिच इज नोन एज एल्यूरोन. फिर ये ग्रूव आता है. एक और प्रोटेक्टिव लेयर है कॉलियोप्टाइल, लेकिन ये सिर्फ प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करती है एंड कॉलियोरिजा जो रेडिकल को करती है. चलिए, नेवर माइंड, विल कंटिन्यू टुमारो. Children, at the end, if you want me to take up any topic again, please let me know. Okay? Chalo. Okay, let's meet tomorrow. Children. God bless. Thank you, ma'am. God bless you, dear.